and good afternoon. Okay. Whatever we have done yesterday before the class, now we are starting the next topic. Topic is same. Now we are taking the next questions. We have completed the question number up to question number 7 of exercise 7.2. Now I am taking the question number 8. The Aryan invested 10,000 rupees in a company. Would he be paid interest at 7% per annum compounded annually? Find the amount received by him at the end of 2 years, the interest for the third year. Okay. So first you have to find out the amount received by him at the end of 2 years. So we have to calculate the rate is given 7%, R equal to 7% or N is equal to 2 years. So we have to calculate the amount after 2 years. So A equal to P 1 plus R upon 100. This is the formula of finding the amount. P is how much? 10,000. 1 plus or 7% to the power 2. So 10,000 107 upon 100. The power is 2, so you have to multiply 2 times. 107 upon 100. कब आ रही है तो डिवाइस में ना ये डिस्चार्ज हो गई मेरी डिवाइस को तो आप कर दो. So we can take cancel these 4 zeros here. 1, 2, 3, 4. So 107 into 107 if we multiply 107, 107. 7 7 is 49. 749. 107. 9, 4, 7 7 14, 1. यानी कि it becomes 11,449. So this becomes the amount after 2 years. This is the amount after 2 years. 11,449. Okay. Now we have to find out the interest for the third year. The third year we will charge the interest of this amount. Interest for third year that will be equal to 11,449. R is 7%, time is 1 year upon 100. Okay. Now we are calculating the interest only for 1 year. That's why we have taken here 1. Okay. 7, you just multiply by 7, 7 times 63, 7 4 28, 28 over 6.
34, 7 4 is 28, 31, 7 1 is 7, 3 10, 7 1 is 7 over 8. We are dividing by 100, it becomes 800, 1.43. This is the interest for third year. This was the question. You have to tell what will be the amount after 2 years and what will be the interest for the third year. So here we have calculated the interest for the third year and amount after 2 years. Okay. So whatever they have given, we have solved it. Now come to the next question. What sum of money will amount to rupees 9261 in 3 years at 5% per annum? Okay, here we have to calculate the amount. What sum? What sum means? What sum we have taken initially? You have to just tell what initially we have taken. Question number 9 is what sum of money? Suppose the sum of money is P or A is the amount become 9261. P we have to calculate. And time is N is equal to 3 years and rate they have mentioned 5%. Okay. They all values are up to 8 question we have calculated the amount or interest. Here we have to calculate we have to find out the principal amount. Now, what amount becomes 9261 in 3 years at the rate of 5% per annum. So now we are using the same formula. A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n. A is equal to 9261 P 1 plus R 5 upon 100 to the power n. That is 3. 5 by the 5, 5 to the 10, 9 to 6 1 P 22 upon 21, 22 to the power 3. Now we want to find out the value of P. We are taking this term to right hand side, left hand side 9261 21 into 21 into 21. Yeah. Divided by 22 into 22 into 22. If we divide by 11, 11 to the 22, 11 is 88. Of the 4 is remainder 11 to the. If we divide 92 by 11, 11 is 88, 4, 46, 46, 11 for the 44, 44, 21 is remainder. You not cancelling this amount. 9 to 22 is 9 to 6 1 into 21 into 21 21 22 into 22 into 22. Okay. This will be the value of principal amount. So
for calculating, it is not divisible by 11. I think it should be divisible by some number. So most probably it should be divisible by 11. Why it is not divisible? I have not written it correctly. 9261. 11 8 88. 11 5%, 5 to the 10. Oh, this is 28. That is the problem. So it will become what? 21 upon 20 to the power 3. Now we want to calculate the 9261 into 20, 20 into 20 divided by 21, 21 and 21 is equal to. Now you can calculate by any number. Suppose karo if we divide by 9 to 11, 11 1, 12, 12 6 8. It is divided by 3. 3 7 21. 3 2 is 6. 3 3 is 9. Okay. 3 8 is 24. 3 7 is 21. Now you can divide by 7 also. 7 7 4 is 28. 7 4 is 28. 7 1 is 7. 21 into 21 it becomes 440. No? 21 into 21 it becomes 441. I have cancelled this one. Now 20 into 20 into 20 into 2 4 to 8. Yani कि it becomes 8,000. The amount initially the principal was 8,000. Initially we have to take the principal 8,000 to get 9,261 after 3 years at the rate of 5%. यहाँ पर हमें जो है अमाउंट दिया हुआ था, उन्होंने पूछा कि कितना अमाउंट हम लें शुरू में जो हमारे इस रेट के हिसाब से कितने रुपीस हो जाए, यानी कि 9,600 इतने अमाउंट होने के लिए हमें कितना प्रिंसिपल लेना पड़ेगा, तो वो अमाउंट कितना आया 8,000। अगर हम 8,000 रुपीज लेते हैं तो अब ये कितना हो जाएगा 9,261, ये आपको जानना है। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट what rate percent will 2,000 amount to rupees इतने in 3 years at compound interest। मतलब here we have to find out the rate। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने आपने देखा कि अमाउंट कैलकुलेट किया था और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। अभी अभी हमने प्रिंसिपल भी कैलकुलेट किया। अभी रेट एट व्हाट रेट, क्वेश्चन नंबर 10 A is equal to 2315.25 and principal equal to 2,000 and is equal to 3. We have to find out the rate of interest। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है हमें we have to find out the rate of interest। तो A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n 2315.25 2,000 1 plus R upon 100 to the power n, n means 3।
2315.25 divided by 2000. We are removing this decimal. Okay. Now you just try to form this term in power of some number. 231525. 231525. If we divide by 5, 5 4 is 20, 5 6 is 30, 5 3 is 15, 5 5 is 25. The 5 4 is 20, 3 remainder है तो 5 6 is 30, ये 0 हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है, फिर 5 3 is 15. Now we have to put 0 because it is not divisible by any number. Now you can divide by 5. 5 9 is 45, 5 2 is 10, 5 6 is 30, 5 1 is 5. 9261. 9 or 2 11, 11 or 12, 12 6 18. It is divided by 3. 3 3 is 9. 3 8 is 24, 3 7 is 21. 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 9 is 27. 3 or 9 12, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 3 is 9. 3 1 is 3, 3 1 is 3. It is not divisible by 3, 3 4 7 or 3 10. You can divide it by 7. 7 4 is 28, 28 6, 7 9 is 63. 7 7 is 49. Here we are getting 3 3 7 3, so it should be 5 3 also. 5 also 5 4 is 23, 5 6 is 30, 1 5 3 is 15, 5 7 is 25, 5 9 is 45, 1 5 2 is 10, 5 6 is 30, 5 1 is 5. 1 2 3 कोई बात नहीं, जितना भी आया है उसको हम लिख रहे हैं. It is equal to 1 plus r upon 100 to the power 3. It is equal to 5 into 5, 3 to the power 3, 7 to the power 3. Here 2, 0, 0, 1 2 3 4 5. We have already 3 0 5 0. 5 से we can cancel 5 4 is 20. Again we are cancelling 5 8 is 40. ठीक है. 5 4 is 20. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. It becomes 5 4 is 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 5 8 is 40. 8 are equal to 1 plus r upon 100 to the power 3. Here we are getting 3 into 7 upon 20 to the power 3 equal to 1 plus r upon 100 to the power 3.
देखिए ये जो है हमारे पास द्वारा देख लीजिए, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हुई है। कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पर अमाउंट दिया है क्यों, उन्होंने हमें क्या दिया था, अमाउंट भी दिया था और प्रिंसिपल भी दिया था। जो अमाउंट और प्रिंसिपल था उसको हमने लिखने के बाद उसको डिवाइड किया। डिवाइड में कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई है, इससे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी हमने क्या किया, सबको पावर में लिख लिया। ये पावर में नहीं, ये दो 3 पावर में आ रहा था, हम चाहते हैं ये भी 3 पावर में आए, ये भी 3 पावर में आए, तभी हम इसको सॉल्व किए, क्योंकि ये 3 पावर है तो ये भी 3 पावर में आना जरूरी था, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये दोनों टर्म जिनमें 3 की पावर में नहीं आ रहे थे, तो इसका मतलब ये डिविजिबल हो सकता है नीचे वाले टर्म से, तो हमने नीचे वाले टर्म को डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि 8 जो है 2 का क्यूब होता है, तो इसको, और ये 3 0 है तो इनकी जगह हमने 20 यूज कर लिया। 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 हो जाएगा। अब दोनों ही साइड में क्या है, दोनों ही साइड में क्यूब लिखा हुआ है, जब दोनों साइड में क्यूब है तो दोनों साइड का हम जो है क्यूब रिमूव कर सकते हैं। अब हमें क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों साइड का हम क्यूब हटा रहे हैं। जब हम दोनों साइड का क्यूब हटाएंगे तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 20 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। दोनों ही तरफ हमने क्यू को रिमूव कर दिया, यानी कि 21 अपॉन 20 है, ये 21 अपॉन 20 1 को हम इधर ले आए तो कितना हो गया, आर अपॉन 100 हो गया। यहाँ ऐसे भी है तो कितना हो गया, 1 अपॉन 20 हो गया, 100 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 5 आ रही है, यानी कि रेट जो होगा वो 5% है, ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन से अलग है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे, है ना, इसमें हमने स्टार्टिंग जो की है वो अमाउंट से की है और प्रिंसिपल से की है। अमाउंट और प्रिंसिपल के जो वैल्यू है उसका यूज करके हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमने इसको पावर में लिखने की कोशिश की है, क्योंकि ये पावर 3 में, तो इधर वाली लेफ्ट वाली टर्म की पावर 3 में आ जाएगी, ताकि हम इसको दोनों साइड की पावर 3 को हम रिमूव कर सकें, ठीक है। इसलिए हमने पावर 3 को रिमूव करने के लिए हमने ये स्टेप लिया, ठीक है, उसे सिंप्लीफाई किया। उसके बाद फिर हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना इजीली हो गया। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है। जब भी कभी आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन कभी दिए हुए हैं, तो इसको आप खुद करके जरा एक दो बार एग्जामिनर में दिया हुआ क्वेश्चन उसको करके देखना, ठीक है। जब आप खुद करोगे तब आप इसको ठीक से कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 40,000 अमाउंट टू रुपीज 46,000 इन 1.5 year compound interest payable half yearly, find the rate of interest। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 करना है, तो एग्जैक्टली सेम है। बस इतना ध्यान रखना है, ये पेबल हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली पे करने में हम क्या करते हैं, जो भी टाइम है उसको हम डबल कर देंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, वो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो उसको आपको डबल करके आंसर लिखना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो हाफ आएगा, क्योंकि हाफ ईयरली है, उसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, एंड व्हाट टाइम विल रुपी अमाउंट टू रुपीज इतने एट 4% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ये भी यार न्यू क्वेश्चन है, इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने अभी पहली बार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये अमाउंट है ए इज इक्वल टू 17,576, पी है आपका 15,625, रेट है आपकी 4%।
फाइंड आउट क्या करने है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू में फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ पर हमें एन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हम वही लगा रहे हैं, ए इक्वल टू टी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। ये है आपका 70,576, 15,625, 1 प्लस 4%, 4/100, ये है की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। जो भी वैल्यू गिवन थी वो वैल्यू हमने पुट कर ली उसके अंदर। ए की वैल्यू 70,576, P is equal to 15,625 और R 4% गिवन था। तो बस आपको क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर दो, 4 × 4, ठीक है, 4 × 8, 4 × 5 = 20, और इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। अगर हम 17576 15625 is equal to 26/25 to the power n। अब हमें जो है यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए, ये जो टर्म आएगी 26/25 की पावर में आनी चाहिए ना। कोई ना कोई ये जो पावर ये टर्म लिखी हुई है, ये टर्म भी है ना 25 के पावर में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये 26 की पावर जितनी नीचे वाली होगी उतनी ऊपर की होगी, तभी हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ये देखो, आप अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या फैक्टराइजेशन वैल्यू निकालते हैं 15625, 5 से डिवाइड किया, 5 3 से 15, 5 × 5 5 × 10, 5 5 से 20, 5 से डिवाइड कर लिया, 5 6 से 30, 5 × 10, 5 5 से 26, यह है आपका 5 × 5, 5 × 10, 5 से 25, ये 5 से डिवाइड किया, 5 × 10, 25 आ रहा है, ये भी 25 आ रहा है, ये भी 25, यानी कि नीचे वाली जो टर्म आ रही है 25 टू दी पावर 3 आ रही है। तो ये 25 है, ये भी 25 का एक ये बन रहा है, 25 का ये बन रहा है, 25 का ये बन रहा है। तो इसी से हमें आइडिया हो रहा है क्या ये भी 26 की पावर नहीं होनी चाहिए। आप इसको चेक कर सकते हो, जब आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये भी 26 टू दी पावर 3 आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि दोनों तरफ की पावर सेम होगी। ये जो भी 26/25 टू दी पावर 3 है, ये भी 26/25 टू दी पावर 3 है, तो दोनों की पावर 3 है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड, दोनों का बेस सेम है, तो पावर मस्ट बी इक्वल, n = 3। यानी कि जो हमारा अमाउंट है उस अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट बनने में कितना टाइम लगेगा, उसको आपको जो टाइम लगेगा वो है = 3 इयर्स का टाइम, ठीक है। यानी कि हमने जो ये क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहली बार ये क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें हमने n की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो वो अमाउंट जो गिवन था, जो प्रिंसिपल गिवन था, वो हमने नोट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया है, सारी टर्म को एक तरफ ले आए। अंदर वाली टर्म जो है, जो पावर के अंदर है, n के अंदर, उसको हम इधर उधर नहीं ले आ सकते जब तक कि उसकी पावर को हम सिंपलीफाई ना करें। तो इसलिए हमने उसको एज इट इज रहने दिया, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। सिर्फ हमने क्या किया है, नीचे वाली टर्म का हमने आइडिया लगा लिया, या ऊपर वाली टर्म को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं नीचे वाली, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमने 25 की पावर 3 लिख रहे हैं, तो ये भी 26 की पावर 3 होगी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा n = 3, हमारा ये आंसर होगा। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया।
फिर बेटे वो लास्ट क्वेश्चन है 13,16,000 invested at 10,000 per annum compounded semi annually amount to rupees. Now find the time period of the investment. यहाँ पर भी देखो सारी वैल्यू दी हुई है, पी भी दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी गिवन है और अमाउंट भी गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी बस यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा 7.2 तक। तो 7.3 हम बोलते हैं कि 7.3 नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आप चाहो तो यार इसके क्वेश्चन जो टाइम है मैं इसी को बता देता हूँ, बहुत होता है 7.3 बता देते हैं। चलो इसको सेटिंग क्वेश्चन है जो टाइम में मैं लिख देता हूँ, इतना टाइम पूरा तो नहीं हो पाएगा। ये सेटिंग है आपका, इसमें जो है आपको अमाउंट जो गिवन है आपको 16,000 और प्रिंसिपल है आपका सॉरी प्रिंसिपल है 16,000 और अमाउंट है आपका 18,522। फाइंड द रेट है आपकी 10%। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्क है, बस आपको जो है तुमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है आपको। a की वैल्यू जो फॉर्मूले में होता है, फॉर्मूला होता है a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। 18,522 divided by 16,000 1 plus r10 upon 100 to the power n। यानी कि 0 में 0 कैंसिल कर सकते हैं, यानी कितना हो गया ये 11 upon 10 to the power n, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है ये जो 11 upon 10 आ रहा है, इससे हमें आइडिया लग रहा है कि ये वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 11 upon 10 की फॉर्म में आनी चाहिए। 11 upon 10 की फॉर्म में आने के लिए आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड किया हमने, 4 4 से 16, 4 टारगेट हो गया, 4 से डिवाइड करके देखो, 4 4 से 16, 2 4 6 से 24, 4 3 से 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। किसी और नंबर से डिवाइड करके देखो, 2 से कर दो, 2 8 से 16 8,000, 2 9 से 18, 2 2 से 4, 2 6 से 12, 2 होगा तो ये 8,000 है, ठीक है। तो ये 10% जो रेट दिया हुआ था ये सेमी एनुअली दिया हुआ है, सेमी एनुअली दिया हुआ है तो रेट जो लेंगे आप 5% लेंगे, 5% लेंगे तो 5 upon 100 होगा, यानी 5 to the 10 21 upon 20 to the power n, ठीक है। तो इसको जो है 20 की पावर हम जो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 21 की पावर 3 हो जाएगा दोनों की तरफ से। तो दोनों का बेस m है तो हमारा क्या होता होगा n इक्वल टू इसमें भी कितना आ जाएगा 3 है,